حج کے لیے 65 سال سے کم عمر کی حد مقرر، اے کے خان درخواستیں داخل کرنے کی 22 اپریل آخری تاریخ، سنہری موقع سے استفادہ کرنے کا مشورہ۔ اے کے خان IPS ریٹائرڈ مشیر محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ نے کہا کہ حج 2022 کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے رہنمایہ خطوط کے اعلان کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے 65 برس سے کم عازمین حج سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں اے کے خان نے بتایا کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ جون کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب روانہ ہوگا۔ حکومت سعودی عرب کے احکامات کے مطابق سرکولر نمبر 12 کی روشنی میں عازمین حج کو حسب ذیل قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام درخواست دہندگان جو 30/4/2022 کو 65 سال کی عمر پہنچ چکے ہیں، حج 2022 کے لیے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے درخواست گزار یا 70 سال کے محفوظ زمرے کے ساتھی جن کے کور نمبر عمر کی پابندیوں کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے ہیں، نئے محرم اور نئے شریک عازمین کے ساتھ 22/4/2022 تک نئے سرے سے حج 2022 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ وہ افراد جو حج 2022 کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں لیکن پاسپورٹ کی عدم دستیابی یا کسی وجہ سے بروقت 15/2/2022 درخواست نہیں دے سکے، اب وہ 22/4/2022 تک حج 2022 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ کووڈ-19 سعودی عرب کی منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں اور 72 گھنٹے روانگی سے قبل PCR منفی ٹیسٹ کی رپورٹ حج 2022 کے لیے لازمی ہے۔ 65 سال سے کم عمر کے حج درخواست دہندگان جنہوں نے اپنا کور نمبر حاصل کر لیا ہے، انہیں حج 2022 کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج اپنے موبائل سے HCOL کے ایپ سے بھی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ عازمین حج 300 روپے رجسٹریشن فیس کے ساتھ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے حج کمیٹی کے ویب سائٹ سے یا ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں۔ سب سے پہلے رمضان کریم کی مبارکباد تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سال یعنی کہ 2022 کا حج سیزن جو ہے، اس میں سینٹرل حج کمیٹی سے نئے انسٹرکشنز حاصل ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے، اگر اس سے ہم لوگ کمپیئر کر کے دیکھیں تو کافی چینجز آئے ہیں۔ سب سے پہلے 65 ایئرس یعنی کہ 65 سال سے زیادہ عمر والے جو بھی عازمین حج ہیں، ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے، یعنی کہ 65 ایئرس سے جو ایج زیادہ ہوتی ہے وہ اس سال حج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو ان کی اپلیکیشنز بھی ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اور سعودی حکومت کی طرف سے جو یہ انسٹرکشن ہے کہ کسی حالت میں 65 پلس کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، عالم بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے یہی انسٹرکشن ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواتین عازمین حج ہوتے ہیں، وہ 65 کے کم ایج والے ہوتے ہیں، مگر اگر ان کے محرم 65 ایئر سے ان کا ایج اور زیادہ ہے تو یہ جو اوریجنل اپلیکیشن ہوتا ہے عازمین حج کا وہ بھی کینسل ہوتا ہے۔ اگر آپ آلریڈی اپلائی کر لیے ہیں پھر بھی وہ اپلیکیشن کینسل ہو جائے گا۔ محرم بھی شرط ہے کہ محرم بھی 65 سے کم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ عازمین حج کا ایج بھی 65 سے کم ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی چینج ہے اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے اس کے مقابلے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کووڈ کا سچویشن تھا، اس میں بہتری تو آئی ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ پورے طرح سے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو اس لیے سعودی حج ڈپارٹمنٹ کے جانب سے یہ انسٹرکشن بھی ہے کہ ڈبل ویکسینیشن جو سعودی میں ایکسیپٹڈ ہیں ویکسینز، یعنی کہ ہمارے پاس جو دو ویکسین ہی یوز کرے تھے ہم لوگ ادھر تلنگانہ میں، کو ویکسین تھا، کووشیلڈ، یہ دونوں ایکسیپٹڈ ہیں۔ اور اس کے آگے کوئی دوسرا ویکسینیشن میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے ویکسینیشن کرے ہیں تو اس کی ایلیجیبلٹی چیک کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ سعودی حکومت جو ویکسینز کو الاؤ کرے گی اسی کے تحت ویکسینیشن ہونا چاہیے، اور صرف وہ جو ویکسینیٹ ہوتے ہیں ان عازمین حج کو ہی وہاں پہ الاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी और भेजना ना भेजना ये फैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे। अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहे एप्लीकेशंस, इससे पहले जो अप्लाई करे थे वो विड्रा भी कर सकते हैं। ये अपने ज़ाती तौर पर इसको विड्रा कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी है फिर भी आप विड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक बात भी यह है कि फिर फ्रेश एप्लीकेशंस यानी कि पहले के एप्लीकेशन तो बरकरार रहेंगे, जो उसमें एलिजिबल हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशंस हासिल करने का डेट, अप्लाई करने का डेट जो है इसमें भी इजाफा किया गया है अप्रैल 22 तक, यानी कि आज अप्रैल 10 तारीख है, 11 तारीख है और 11 दिन की मोहलत है आपको। इस दौरान आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेने के बाद में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्कानात भी हैं वहाँ से सऊदी हुकूमत की तरफ से कि आज़मीन हज जो नॉर्मली हिंदुस्तान का कोटा 1,30,000 1,40,000 तक हुआ करता था, हो सकता है कि इसमें जैसे दूसरे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है वहाँ भी हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए भी इसमें कटौती हो सकती है। 50% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ये नंबर क्या है हिंदुस्तान के लिए, नंबर क्या है और उसमें तेलंगाना हज कमेटी के लिए कितने स्लॉट्स दिए गए हैं, इसका इंस्ट्रक्शन अभी हासिल नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले गुज़िश्ता सालों में जो नंबर मिलता था उससे भी काफ़ी कम हो सकता है इस बार। तो ये एक बात है। और अब यहाँ से जो रवानगी है जून के बीचों बीच यानी कि अराउंड 10-15, वो फिक्स डेट तो नहीं आया है। तो पहली फ़्लाइट जून के मिडिल में यहाँ से फ़्लाइट की रवानगी हो सकती है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्लान कर लेना है, तो इसको नज़र में रखते हुए आप प्लान कर सकते हैं कि जून के मिडिल में अगर आपका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल हज कमेटी के जानिब से, तो आप यहाँ से रवानगी के लिए जून मिडिल के लिए तैयार होना चाहिए। और एक बात यह है कि ये सारा और भी तफसीलात हैं, ये सारे तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का जो वेबसाइट है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी चल रहा है जिसका नंबर है, लैंडलाइन नंबर है ये 23298793। ये नंबर पर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंक्वायरी काउंटर भी है जहाँ पर आप हैदराबाद के हैं या आसानी से आ सकते हैं यहाँ तक, हज हाउस तक। तो यहाँ के हज कमेटी के काउंटर पर भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है। और कोई आपको जानकारी हासिल करना है तो हज कमेटी विज़िट करके ले सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ हर साल जो तैयारी करते हैं हम लोग, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नसीहत या हिदायत देते हैं कि आपकी सेहत को सही तरह से आप रखना चाहिए और उसके साथ में दूसरे जो भी प्रिपरेशंस करना है अब वो तो आप जानते हैं, उसको कर ले सकते हैं। तो ये है। और एक बात भी मैं बताना चाहूँगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कोटा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। अगर दिया भी गया, हो सकता है कि कुछ पोर्शन इनको भी दिया जा सकता है, मगर कितने स्लॉट्स होंगे ये किसी को इसका अंदेशा नहीं है अभी। इसीलिए बहुत एहतियात के साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हैंडल करना होगा, क्योंकि 2 साल से हज का मौका नहीं था, यानी कि
2021 या 2020 दोनों सीजन्स में आज़मीन हज कोई भी यहाँ से रवानगी नहीं हुई थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जाना चाहेंगे हज में, हज करना चाहेंगे इस साल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं जो उम्रा के जो उसके लिए जो आप ऑलरेडी खोल चुके हैं उम्रा के लिए और फ्लाइट्स रेज्यूम हो चुके हैं, काफ़ी रश है उम्रा में जाने के लिए। वो तो सऊदी एम्बेसी से जो वीसास मिलते हैं उस पर ही जा सकते हैं। इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इस बार ज़्यादा रश होगा, डिमांड होगा, इसलिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हजरात प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास जाके वहाँ पर उनका सहारा लेना चाहेंगे, मगर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ इनको कोटा नहीं दिया गया है, तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शन सेंट्रल हज कमेटी से और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से आने तक इसका इंतज़ार करना ज़रूरी है। अभी कुछ वहाँ पैसा पे करना, ऑलरेडी बुक कर लेना, ऐसा मत कीजिए, हो सकता है कि आप धोखे में आ जाएंगे। और वो ये भी हो सकता है कि आपका जो मंशा है हज करने का वो भी पूरा ना हो सके प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से। ये इसके लिए मैं आपको आगाज़ करना चाहता हूँ। दुनिया भर में कोविड के हालात हैं, इसको देखते हुए हिंदुस्तान से भी एम्बार्केशन पॉइंट्स में कमी की गई है। हर हमेशा ये देखते थे कि हम लोग के हिंदुस्तान में 23 एम्बार्केशन पॉइंट हुआ करते थे। इस साल ये नंबर घटाकर 10 पर लाई गई है। वैसे हैदराबाद एम्बार्केशन सेंटर तो बरकरार है, बाकी के जो आसपास के जो सेंटर्स थे इनमें भी कुछ कैंसिल किया गया है वहाँ पर। तो आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में काफ़ी अजलाएँ हैं जहाँ से आज़मीन हज यहाँ पर आएंगे, उनकी